हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं हिमांशी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेसन 1 क्लास 11th का। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं क्लास 11 की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़ी सी मैं डिले हो गई, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 11th। So today we are going to start the unit 1 lesson 1 about the living world. So before going further, first we should know what is the meaning of biology, कि biology का meaning क्या है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यारो, प्लीज़ एक बटन ही लगता है और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So let's start. So I was talking about what is the meaning of biology. So biology in Hindi we are saying biology the जीव विज्ञान, right? So biology क्या है? The science that studies the living organisms, and biology is the scientific study of life also, we can say. It is the natural science with a broad scope but has several unifying themes that tie it together as a single and coherent field. जैसे कि नाम बता रहा है जीव विज्ञान, अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट, आवर लेसन भी हमारा उसी चीज़ के बारे में है, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा तो आप क्या डिस्क्राइब करने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बुक्स देख के डर गए होंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इफ़ यू वांट द नोट्स आई विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो, एंड बिल्कुल टॉपिक मस्त वाले नोट्स दूंगी मैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सून आई विल स्टार्ट द नीट कोचिंग ऑल्सो, so if you are interested in it, please ping me, you can message me in the comment box. So first, what are the objectives of this lesson? So क्या क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन, what is living, diversity in the living organism, we will talk about the taxonomic categories and also about the taxonomical aids. So after completing this lesson, you will be able to describe the widely accepted theory of origin of life, explain what is organic evolution, give morphological, embryological and molecular evidence in favor of organic evolution, even state modern theory of evolution, explain the sources of organic variation like genes, chromosomal mutation, recombination, gene flow and genetic drift. Explain natural selections with example. Explain the role of isolation in the evolution. List the various isolating mechanisms. Explains speciation and understand the Hardy-Weinberg equilibrium to relate the genetic and evolution, and also define the classification. So let's start. So first of all, the chapter is about the living world, right? अर्थ के ऊपर बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं। सिंस आप बच्चे थे थर्ड फोर्थ क्लास में, तब से आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस आ रहा है। फ्रॉम थर्ड क्लास यू नो द मेन व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, राइट? लिविंग थिंग्स, अर्थ का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई लिविंग थिंग प्रेजेंट ना हो, राइट? हर जगह, even in the forest, mountain, desert, ocean, the freshwater bodies, even in the hot springs, the polar region, we can say almost धरती का हर कोना, every place of the earth have the living organisms. Like living organism, they have certain characteristics which make them special, right? For example, the growth means the increase in the mass, respond to environmental, right, to reproduce, and capable to metabolize. So what are the major characteristics? These are the major characteristics: reproduction, capable to metabolize, respond to environmental stimuli, and even the growth. So first we will talk about the growth. So what is growth? Growth का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो आपने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम देखते आते हैं कि हम भी बड़े हो रहे हैं, हम अपने आप के अंदर भी ग्रोथ को महसूस करते हैं, राइट? इवन हमारे घर में छोटे बेबीज़ होते हैं। सबसे मेन तो बात है कि हम खुद को भी ग्रो करते हुए देखते हैं, उससे भी हमें ग्रोथ का पता लगता है। इवन
धरती की कोई भी लिविंग थिंग है वो ग्रोथ तो, अगर वो लिविंग थिंग है तो वो ग्रोथ तो पोजेस करती है, राइट? उसके सो लिविंग थिंग ग्रो बाय इंक्रीज इन द मास, राइट, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और वी कैन से इन द इंडिविजुअल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, their growth occur by the cell division or increase in the number of cells, right? Growth also occurs continuously throughout the life in the plants, whereas in the animals also it occurs up to the certain age only। जैसे कि जब तक हमारी डेथ होती है, जब तक कुछ ना कुछ हम मतलब ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ का मतलब यही नहीं है कि हमारी हाइट ही बढ़े, ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि सपोज करो आपको चोट लगी है, आपकी सेल डेड हो गई हैं चोट की वजह से, बीमारी की वजह से, तो नई सेल्स ग्रो करती हैं, दैट इज ऑल्सो द ग्रोथ, राइट? तो ऐसे however growing in certain body parts like the nail, hairs and replacement of the lost cells occurs throughout the life। हम आपके नाखून आपने देखा होगा, आपको हर बार काटने पड़ते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ तो पोजेस हो ही रही है ना। आप अपने बाल कटवाते हो, वो बाल फिर दोबारा ग्रो कर जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारे सर्टेन बॉडी पार्ट्स में भी हम लोग इजीली अपनी ग्रोथ देख सकते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं होती। In unicellular organism, growth can be observed under the microscope by simply counting the number of cells via the vitro experiment. So, if we will talk about the non-living things like mountain, sand dunes, they also grow in size by just accumulating the material on their external surface। अब जैसे सैंड ड्यून्स हैं, मतलब रेत का जो टीला है, वो मतलब उसके ऊपर रेत धीरे धीरे एक लेयर दर लेयर इकट्ठा होता रहता है, राइट? सो वो एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रोथ शो कर रहा है। दस ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होती है? इंटरनल होती है। नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज करो आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आपने डिग्गी बड़ी करा ली, डिग्गी छोटी करा ली, टायर बदलवा लिए, तो ये एक्सटर्नल होगा, राइट? while in the non living thing it is external, not internal, so it is to be noticed that a dead organism also do not grow, right? Next we will talk about the reproduction। so reproduction, what is the meaning of reproduction? जैसे कि आपके पापा थे, आपके दादा की जनरेशन है आपके पापा, आप अपने पापा की जनरेशन आगे, आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स they produce offsprings possessing features similar to those of their parents। In multicellular organism, the mode of reproduction is generally sexual। Living organisms also reproduce by asexual means। For example, fungi spread by multiplying itself, right, by producing millions of asexual pores। Some fungi, the filamentous algae and Protonema of Moses, multiply by fragmentation। In yeast and hydra, budding occurs to produce the new organism, while in the flatworm, regeneration of fragmented body parts occur। मतलब वो अपने बॉडी पार्ट को अलग करके उसी में से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है, राइट? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा reproduce by increasing the number of cells, that is also called the cell division। Some organisms like mules, sterile worker bees and infertile human couples, they do not reproduce, hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organisms। Next we will talk about the metabolism। so metabolism, what is metabolism? Metabolism is also another characteristics and defining feature of the living organisms, right? So the sum total of anabolic and catabolic continuously occurring inside the body is called metabolism। so difference क्या है इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में? देखो, जो एनाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सिंपल सब्सटेंस बनते हैं फ्रॉम सिंपलर वंस, एनर्जी स्टोर होती है, और एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं कॉम्प्लेक्स वन से, एनर्जी रिलीज होती है, और कैटाबॉलिज्म हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए बिकॉज वी यूटिलाइज द एनर्जी। तो जब भी आप एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके, सो
Another thing is the viruses are considered as the non-living because they do not need energy for their activities. Metabolic activities are altogether absent in the viruses. Next we will talk about the cellular organization. सो व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? देखो, जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है, राइट? इन द 5th क्लास और इन द 6th क्लास आप लोगों को बताया था कि सेल क्या है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो सेल है वो हमारी बॉडी में जुड़कर हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट करता है। और चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन्स हो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनते हैं, इसलिए उनका नाम है यूनिसेलुलर, ठीक है। मगर जो मल्टी सेलुलर, देखो मल्टी का मतलब क्या है? बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं। जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? लिविंग मैटर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं हमारी पूरी लाइफ प्रोसेसेस में। Next we will talk about the consequences. So what is the meaning of consequences? So all living organisms have excellent ability to sense their environment. They respond to physical, chemical and biological stimuli, right? The various external factors to which living organisms respond are light, water, temperature, pollutant and other organisms. Light duration, or we can say photo period, affect many seasonal breeders and even the plant and the animals. All living organisms respond to the chemicals entering their body. Humans, we can say, are the superior of all the living organisms because they have additional ability of self-consciousness. Therefore, they can also said to be defining property of the living organism. However, in the human beings, it is more difficult to define the living state. For example, a patient laying in the coma, supported by machine that replace heart and lungs, or we can say brain dead with no self consciousness, right? So like this, now we will talk about the body organization. So in the body organization, the body of living organism is very well organized by several components and several subcomponents, and they cooperate with each other to function the whole body, right? So the physical and biological hierarchies, सो फिजिकल क्या है? जो हमारे नॉन लिविंग है, और बायोलॉजिकल जो हमारे लिविंग है। जो फिजिकल मतलब जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एग्रीगेट करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड्स विच फाइनली एंटर द लिविंग वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। और जो ये सेल्स होती हैं ये ऑर्गेनाइज करती हैं और एक टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जुड़कर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन्स आपस में जुड़कर क्या बना देगी? ऑर्गन सिस्टम बना देगा। और जब हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, राइट? मगर द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्सिक्वेंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, बोन एक हार्ड टिश्यू है, राइट? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, राइट? मगर ज़रूरी नहीं है कि जो उसके अंदर सेल्स हैं उसके पास भी सेम प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है? So this phenomena of interaction between various components of the body result in the hierarchy of the organization. So the various life process are the result of these interaction and the coordination. जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इनेबल करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और रेस्पॉन्ड करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है विद देयर एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय शेयरिंग सम कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज नोन एज डीएनए। जो डीएनए है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्राइट्स इन द ऑर्गेनिज्म। दस बायोलॉजी को क्या कह सकते हैं? द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एंड इट इज़ द स्टोरी ऑल्सो ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है? Some other characteristic of living organism. See, we have discussed some important and defining characteristics of the living things. However, organism also have other features that differentiate them from the non-living thing. For example, their shape and size, their life cycle, their movement, self-regulation, adaptation, healing and repairing, excretion and their death,
and even the self-regulation. So living world, we will talk about the diversity and the taxonomy. See, जो हमारी अर्थ है इस पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, and according to the survey the number of species that are known and described are between 1.7 to 1.8 million only. मगर अर्थ के ऊपर 15 to 16 मिलियन लाइफ स्पीसीज है, मगर इसमें से देखो हमने कितनी कम डिस्कवर की हैं. दिस नंबर रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? द मीन्स द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, फॉर्म ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड, और वी कैन से इन द लिविंग वर्ल्ड. जो लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल एंड द ह्यूमंस. जो बायोडाइवर्सिटी है ये लिमिटेड नहीं है. इफ़ वी एक्सप्लोर न्यू एरिया and even old ones, new organisms are continuously being added. This huge available variety cannot be studied and identified without having a proper system of classification and the nomenclature. So first we will talk about the systematics. So the systematics, the word systematic, it is derived from the Latin word systema, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट. ठीक है. सो सिस्टमेटिक्स क्या है? ये ब्रांच है साइंस की जो डील करती है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज एंड ग्रुप टू रिकॉग्नाइज, डिस्क्राइब एंड द नेम्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ ऑर्गेनाइज्ड प्लान. 1961 में सिम्पसन्स थे जिन्होंने डिफाइन किया था सिस्टमेटिक एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म and all their comparative and evolutionary relationship based on comparative anatomy, physiology, biochemistry and the ecology. So the word systematics and taxonomy are often used interchangeably by the biologist. And systematic में क्या क्या आता है हमारा? Systematic में आता है हमारा identification. ठीक है. सो आइडेंटिफिकेशन जिसमें एम होता है फाइंड करना करेक्ट नेम और एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि द एम टू फाइंड, जिसमें हम करेक्ट नेम और एप्रोप्रिएट पोजीशन देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर भी एग्जामिन करता है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ. नेक्स्ट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या होगा? ये बहुत we can say it is almost impossible to study all the living organism. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है to devise some means to make this possible, and this can be done by classifying the organism, and thus the classification is the process by which organisms are grouped into category based on some easily observable characteristics. So biological classification is the scientific arrangement of organism in a hierarchy of groups, subgroups on the basis of their similarities and the differences. For example, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एक बना दिया हमने, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में हमारे लैंड एनिमल आ जाएंगे. एक्वेटिक एनिमल्स बना दिया जिसमें हमारे वाटर एनिमल आ जाएंगे. राइट. तो इसके एडवांटेज क्या रहेगी? देखो, एडवांटेज इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को ईजिली. जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो इजीली करेक्ट प्लेस पे पहुंच जाता है उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर. और जो हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं ये उसमें भी बहुत आसानी कर देता है, और ये हेल्प करता है इवोल्यूशनरी पाथवेज को बिल्ड करने में, और इजी हो जाता है कि जो फीचर्स हैं पूरे ग्रुप के स्टडी करने एक ही टाइम पे. दस बेस्ड ऑन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट टैक्सा. फॉर एग्जाम्पल द नॉमेनक्लेचर. सो the nomenclature is the system of naming the living organism in the way of particular organism is known as like the common names. So first is the common name. जैसे कि the common name, or we can say the vernacular name, are the local name given to the organism in a specific language in a particular region. They are different name of same organism in different region even if within a country. For example, rose. रोज़ का कॉमन नाम क्या है? हिंदी में बोलें तो गुलाब, बांग्ला में गुलाब, तमिल में रजापो,
डॉग, डॉग को बांग्ला में बोलते हैं कुकुर, हिंदी में बोलते हैं कुत्ता, गुजराती में बोलते हैं कुत्तो, संस्कृत में बोलते हैं सवान और तमिल में बोलते हैं ने। ऐसे ही कैट की बात करें, हिंदी में हम कैट को क्या बोलते हैं, बिल्ली, गुजराती में बिलादी, संस्कृत में बोलते हैं मरजारा, तमिल में बोलते हैं पोन्नाई। कॉटन को भी हिंदी में बोलते हैं कपास, कन्नड़ में बोलते हैं हट्टी, मराठी में बोलते हैं कपस, तमिल में बोलते हैं परुथी, बंगाली में बोलते हैं कार्पस। तो ये कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या रहेगी? अब जैसे कॉमन नेम हैं वो इजी रहते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल कैट को हम बिल्ली बोल रहे हैं, राइट। पीपल फैमिलियर होते हैं बचपन से ही उस नाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम बचपन से ही बिल्ली को बिल्ली बोलते आ रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना। और इवन दे आर बेस्ड ऑन द सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे कौआ, तो हम काव काव की साउंड से समझ जाते हैं कि कौआ है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेगी? ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी नेम्ड बाय दिस मेथड एज देयर आर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोब्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बहुत सारे नेम हैं लैंग्वेजेस, जैसे कि हिंदी के अंदर, राइट। तो हिंदी के अंदर हिंदी नेम जैसे प्रिकली पॉपी है तो उसको वाटर लिली और 15 अदर नेम है उसके इंग्लिश के अंदर। कॉमन नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं डिफरेंट कंट्री के अंदर, जैसे मेज़ है, मेज़, उसके बाद मेज़ मीन्स व्हीट एंड अदर ग्रेन्स इन यूएसए एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉर्न इन सम कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राइट। सो कॉमन नेम्स may be sorry guys, cockroach tha. Some common names may have little relevance also, like lady finger है उसको ओकरा बोलते हैं, विंडो टीयर्स बोलते हैं और भिंडी भी बोलते हैं, राइट। कॉमन नेम्स में भी इनकरेक्ट, जैसे जेलीफिश है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, ठीक है, और जबकि ये रियल फिश है ही नहीं। These names are not useful for the scientific study. अब बिल्ली नेम को तो हम साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज़ कर नहीं सकते, राइट। सो नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम्स। सो साइंटिफिक नेम्स में क्या होगा? साइंटिफिक नेम वो नेम होते हैं जो बायोलॉजिस्ट देते हैं उसको, मतलब जिसने उसको डिस्कवर किया है। दीज नेम रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नेम में क्या क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, असाइंड और एग्रीड बाय द प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया, एंड डिफरेंट फॉर ईच स्पीसीज एंड नॉट यूज्ड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर, ठीक है। किसी के पहले के साइंटिफिक नेम को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो इन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल ये किसने डेवलप किया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डेवलप किया था कार्लोस लिनेस ने 1751 में। जितने भी साइंटिस्ट थे, ऑल साइंटिस्ट नेम फॉर एनिमल्स एंड अंडर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस इन द 10th edition of his book. They have given the names to the plant according to the binomial nomenclature in his book Spices Plantarum. And binomial nomenclature is the system of providing distinct and appropriate name to the organism, each consisting of two words. फर्स्ट में क्या आएगा? नेम ऑफ द जीनस मीन्स जेनेरिक नेम, सेकेंड में आएगा नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। सो इसमें जो मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है उसको जीनस को, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्पीसीज को, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम कुछ कॉमन की बात करें तो जैसे मटर है पी, तो उसका नाम है पिसम सतिवम। ऑनियन का है एलियम किप्पा। बैनियन का है फिकस बैंगलेनीस। मेरे को पता है थोड़े से अजीब लग रहे हैं मगर कोई बात नहीं। अब जैसे डॉग को हम बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस, कोबरा को बोलते हैं हम नाजा नाजा, ह्यूमंस को हम बोलते हैं होमो सेपियंस। सो इसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या होंगे? Rules of binomial nomenclature were initially framed by Linnaeus in his book. So rules क्या थे? International Code for Botanical Nomenclature
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द वायरल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट्स। और जो रूल्स थे ये फ्रेम किए गए थे इन्हीं से। उसमें क्या क्या था? द नेम्स आर जनरली इन द लैटिन एंड रिटन इन द इटैलिक्स। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीन and the second component denote to the species. Both the words in the biological name was handwritten and separately underlined and printed in the italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with the capital letter, while the specific epithets start with the small. For example, Mangifera indica में जो Mangifera है वो capital letter M आएगा, indica में I छोटा आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो जेनेरिक एंड कॉमन नेम्स थे ये सेम भी हो सकते थे, जैसे गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला ही है। ठीक है। उसके बाद नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लिनेस इन 1753 फॉर द प्लांट्स इन द स्पीसीज प्लैनेटरम एंड इन 1758 फॉर एनिमल्स इन द 10th एडिशन ऑफ सिस्टीमिया न्यूटेरिया। द नेम ऑफ categories higher than the rank of the genus are not printed in the italics. Bold letter can however be used in it. Advantage क्या रहा इसका? देखो एडवांटेज ये रहेगा कि जो बाइनोमियल नेम्स हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाते हैं, इनकी लैंग्वेज सेम रहती है, स्मॉल होते हैं, कंपेरिजन होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को ईजिली हम प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी न्यू साइंटिफिक नेम। ठीक है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। देखो टैक्सोनॉमी क्या है? ये साइंस है जिससे हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का पता चलता है। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सास में। ये प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और ये भी कार्लोस ल्यूनेस ने दी थी, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब बेसिक प्रोसेस क्या होंगी इसकी? जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्क्राइब हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी और उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जो डिस्क्रिप्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का ये हेल्प करता है प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म द वेरियस टैक्सा। जो न्यू टैक्सॉन है ये फ्रेम किया जा सकता है और अगर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है या फिर किसी एग्जिस्टिंग टैक्सा से है। ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में, तो टैक्सोनॉमी क्या होगा? ये रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से, और सिस्टमैटिक क्या है? ये साइंस है आइडेंटिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की, डिस्क्रिप्शन की और क्लासिफिकेशन की। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं रूल्स के बेसिस पे और जो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल हैं उनके बेसिस पे, और सिस्टमैटिक रिलेटेड है यूनिक प्रॉपर्टीज से और उसके लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन में। अगर हम क्लासिकल या फिर ओल्ड टैक्सोनॉमी की बात करें तो ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या है? ये कंसेप्ट है क्लासिकल और वी कैन से ओल्ड टैक्सोनॉमी जो एग्जिस्ट करता है सिंस द टाइम ऑफ द एरिस्टोटल एंड थियोपेस्टस। ठीक है। इसमें जो स्पीसीज थे वो बेस्ड थे यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी के बेसिस पे, जो डिस्क्राइब होते थे ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स। जो स्पीसीज थे वो फिक्स्ड थे, उनको कोई चेंज नहीं करता था। जो स्पीसीज थे वो डिलिमिटेड थे बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लासिफाइड हो सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ सम लिमिटेड फीचर्स सच एज उनका रूट मॉडिफिकेशन, लीफ वेनिटेशन, ठीक है, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस इन द केस ऑफ प्लांट्स, and due to the limited number of groups many organisms could not be classified correctly and this finally led to the artificial system of the classification. अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस रहा, जिसको हम न्यू टैक्सोनॉमी में भी बोलते हैं। ठीक है। ये कंसेप्ट दिया गया था जूलियन हक्सले से 1940 में। इसमें क्या हुआ? इसने यूज़ किया एविडेंस फ्रॉम द स्मॉल एरियाज ऑफ द बायोलॉजी, जैसे कि मॉर्फोलॉजी से ले लिया, एनाटमी से ले लिया, बायोकेमिस्ट्री से ले लिया, इवोल्यूशन से ले लिया, सेल बायोलॉजी से ले लिया। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आए? ये जो स्टडी है ये क्या करी जाती है? इट इज़ डन ऑन अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बेस्ड ऑन द वेरिएशन। इसमें फोकस किया जाता है सब स्पीसीज पे, वेराइटीज़ पे, रेसेस पे और उनकी पॉपुलेशंस पे। और जो स्पीसीज हैं उनको आइसोलेट नहीं किया जाता। दे आर रिलेटेड बाय द कॉमन डिसेंडेंट एंड वेरी फ्रॉम देम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जो स्पीसीज हैं वो कंसीडर्ड होती हैं डायनामिक इवन चेंजिंग एंटिटी। ठीक है।
अब टैक्सोनॉमी की कैटेगरी क्या रही? अगर हम प्लांट्स के लिए बात करें तो प्लांट में क्या आ जाएगा? किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और एनिमल्स का किंगडम पहले, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सन्स की, तो ईच कैटेगरी में क्या है? इसको रेफर किया जा सकता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट करती है एक रैंक और कॉमनली ट्रेंड होती है टैक्सन से। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ICBN ने 1956 में। जो मेयर था 1964 में टैक्सन में, इसने क्या किया था? ये ग्रुप था of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category। और इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो टैक्सन है वो रेफर होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड टू इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफ अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम टैक्सन और कैटेगरी के बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या डिफरेंस होगा? देखो, जो टैक्सन है वो डील करता है रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये बिलोंग कर सकता है किसी भी रैंकिंग से। फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सन में ह्यूमंस के बारे में पढ़े तो वो मैमेलिया में आएंगे। अब कैटेगरी में क्या है? जो कैटेगरी है इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म और ये सिंपली रिप्रेजेंट करती है रैंक और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बिलोंग करती है वन पर्टिकुलर रैंकिंग से, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन इन क्लास। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी हायरार्ची की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है ये सिस्टम है ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी लिनस ने। ठीक है, जिसको लाइनेंस हायरार्ची भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट द रैंक। और जो रैंक है या टैक्सन है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। और जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या कैटेगरी हैं ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज होती हैं और नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉमन कैटेगरीज के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी। ठीक है, ज़्यादा लंबा मैं इसको बनाने नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबे समय तक सुनने में और बैठे रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी इनकी कॉमन कैटेगरीज़ के बारे में, जिसमें हमारी स्पीसीज़ आ जाएंगी, जीनस आ जाएंगे और फैमिली, ऑर्डर आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। इवन वी विल टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम। ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 है इस लेसन 1 का। अगली वीडियो जस्ट मैं नेक्स्ट डे डाल दूँगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय।